Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the effect of substituents on rate of electrophilic substitution reactions of arenes. So what is the effect of substituent? Substituent जो present होता है it affects the electrophilic substitution reaction in two ways. It affects the reactivity of arenes, also it affects the orientation of the incoming group. So we will discuss it one by one. So what is the effect of substituent on reactivity or the rate of the reaction? तो जो भी substituent present होता है we know it has plus I effect और minus I effect. सो मान लो एक आपके पास टॉल्विन है, एक बेंजीन है और एक नाइट्रोबेंजीन है. नाउ दिस टॉल्विन में जो मिथाइल प्रेजेंट है इट हैज़ प्लस आई इफेक्ट एंड नाइट्रोबेंजीन में NO2 हैज़ माइनस आई इफेक्ट. सो we know that arenes they undergo electrophilic substitution reaction and electrophilic substitution reaction takes place through the formation of carb cation. So कोई भी चीज़ जो carb cation को stabilize करेगी it will increase the rate of reaction and anything which will destabilize the carb cation it will decrease the rate of the reaction. So we know that in toluene methyl group it has plus I effect. So because plus I effect it will increase the stability of carb cation because it will disperse the positive charge on the carb cation. So we will say that methyl group it has activating influence on the reactivity, activating influence on the rate of reaction, or it will increase the rate of reaction for electrophilic substitution reaction. While in case of nitrobenzene this nitro group it has minus I effect. Now minus I effect की वजह से जो carb cation बनेगा उसके positive charge को और ज़्यादा intensify करेगा. It will intensify the negative charge on the carb cation which will be formed. So in concentration of charge leads to unstability. So NO2 will destabilize the carb cation. So it will decrease the rate of reaction. So we will say that NO2 it has deactivating effect on the rate of electrophilic substitution reaction of arenes. So plus I effect वाले जो ग्रुप्स होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. So what is the effect of substituent on the orientation? Now the substituent which is present on the benzene ring or arenes, तो वो कोई भी इनकमिंग ग्रुप होता है जब सेकंड ग्रुप ने आके अटैक करना होता है, सो दिस ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इट हैज़ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. इट विल डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप आइदर एट ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन. लाइक वी हैव टॉल्विन एंड वी हैव डन इट्स नाइट्रेशन, सो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप आके यहाँ पे अटैक करेगा तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, NO2 ग्रुप पैरा पे भी एंड NO2 ग्रुप मेटा. तीनों पोजीशंस वेकेंट है तो तीनों पोजीशंस पे आ सकता है. सो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रो टॉल्विन्स. ऑब्वियसली मेटा जो है बहुत लेस अमाउंट में बनेगा, सो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टॉल्विन्स. सो वी कैन से दैट ग्रुप्स जो प्रेजेंट है दे आर ऑफ टू टाइप्स. आइदर दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ये इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेंगे, आइदर इट इज मेटा डायरेक्टिंग. वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? बिकॉज कार्ब केटायन which is formed by attack of incoming group at ortho and para position is more stable, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. वाई दिस ग्रुप्स, वाई सम ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग? बिकॉज कार्ब केटायन formed at meta position by the attack of incoming group at meta position is more stable by as compared to the contact attack of incoming group on ortho and para position. So let us see the mechanism. Let us first start with ortho para directing groups. Now ortho para directing groups they are of two types. First is groups having plus I effect and second is group having minus I and plus M or plus R resonance effect. So this is our टॉल्विन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया. सो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड. सो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे. दिस इज 1A. ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे एंड वी विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम. Again these electrons will move on this side and we will get positive charge on this carbon atom. So we will get these three resonating structures. अगर जो है incoming electrophile para position पे attack करेगा तो electrophile will come on para position and these electrons will also move on para position. So this carbon will get the positive charge. तो ये हमारे पास structure बनेगा. फिर ये electrons इधर move करेंगे and we will get positive charge and ये electrons इधर move करेंगे and we will get positive charge on this carbon atom. So this is 2A, 2B, 2C. इसमें से 2B it has carbon positively charged carbon directly attached to CH3 group. अगर electrophile meta position पे attack करेगा, this is meta position. If electrophile attacks as meta position, so this is electrophile attacking at meta position and positive charge is here.
इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन दिस कार्बन एटम, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल मूव ऑन दिस कार्बन एटम. It is also a resonance, we get 3 resonating structures, but there is no such structure जिसमें कि positive charge is on the carbon which is directly attached to CH3 group, जैसा कि ऑर्थो और पैरा अटैक में हमें मिल रहा था. So 1A and 2B structures are highly stable. Why? Because मिथाइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो सीधा उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्जन जो है बहुत ज़्यादा होगी. सो दीज कार्बकेटाइंस आर हाईली स्टेबल. So that's why methyl group is ortho-para-directing, because carb-cation formed by the attack of electrophile at ortho position and para position are more stable than carb-cation which is formed at meta position. So that's why methyl group, it directs the incoming electrophile at ortho and para position and not at meta position. Now second type of ortho-para-directing groups are minus I and plus M effect. तो माइनस आई तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और प्लस एम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. सो जैसे कि हमारे पास बेंजीन पे NH2 लगा है, दिस इज एनिलीन. सो नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो वी विल से दैट NH2 ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट, बट बिकॉज NH2 ग्रुप हैज दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द सिस्टम टू विच इट इज अटैच्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लस R और प्लस M इफेक्ट. तो एनिलीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन. सो इफ इट अटैक्स ऑन ऑर्थो पोजिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस ऑर्थो पोजिशन, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर. अब यहाँ पे NH2 की, यहाँ पे तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्बकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, बट NH2 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है जिसकी वजह से इट विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टू द सिस्टम. सो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल बिकॉज दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द एटम्स दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सभी एटम्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है. लाइकवाइज अगर इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे अटैक कर रहा है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो मूव ऑन दिस साइड एंड वी विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी विल गेट. पैरा अटैक से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड वी विल गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे एंड वी विल गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अभी तक तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था NH2 ग्रुप, बट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, सो दिस इज प्लस R इफेक्ट. तो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर 2D. It is highly stable because in this structure every atom has complete octet of electrons. But अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा, so we will get this structure. सो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया. सो देयर इज़ नो सच स्ट्रक्चर जहाँ पे कि पॉजिटिव चार्जेस ऑन द कार्बन विच इज़ अटैच्ड टू विच NH2 इज अटैच्ड. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे कि NH2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सके टू स्टेबलाइज द कार्बकेटाइन. सो कार्बकेटाइन फॉर्म्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स एंड मेटा पोजिशन पे 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. ऑल्सो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हमारे पास 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं विच आर हाईली स्टेबल एंड एनी सच स्ट्रक्चर इज मिसिंग इन केस ऑफ मेटा अटैक. सो वी कैन ईजिली से दैट NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज कार्बकेटाइन विच इज फॉर्म्ड बाय द अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बकेटाइन विच इज फॉर्म्ड बाय द अटैक एट मेटा पोजिशन. ठीक है, तो नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. व्हाई सम ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. सो जैसे वी हैव दिस नाइट्रोबेंजीन इट पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन एनी पोजीशन दैट इज ऑर्थो, पैरा एंड मेटा. तो फर्स्ट अगर ऑर्थो पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इधर मूव करेगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड. सो वी विल गेट दिस कार्बकेटाइन. Again 1A structure is highly unstable because NO2 ग्रुप किस कार्बन पे अटैच्ड है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. तो NO2 ग्रुप का ऑलरेडी माइनस आई इफेक्ट है. माइनस आई इफेक्ट की वजह से इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो इट विल इंटेंसीफाई द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज होगा वहाँ इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज द अनस्टेबिलिटी. सो स्ट्रक्चर 1A इट इज़ हाईली अनस्टेबल. उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड पॉजिटिव चार्ज मूव ऑन द बेंजीन रिंग. अगर इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, तो पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पैरा पोजिशन. तो अगेन
इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ऐसा बना है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू NO2 ग्रुप। अब इस NO2 का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्लस पॉजिटिव चार्ज विल बी कंसंट्रेटेड, तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाएगा। दिस इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो मेटा पोजीशन पे इधर आएगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड, सो वी विल गेट पॉजिटिव चार्ज हियर। अगेन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मेटा पोजीशन पे आप देखोगे देयर इज नो सच स्ट्रक्चर जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू NO2 ग्रुप। तो कार्ब कीटाइन विच इज फॉर्म्ड बाय ऑर्थो एंड पैरा अटैक, वहाँ पे दो कार्ब कीटाइंस ऐसे बन रहे हैं विच आर हाईली अनस्टेबल, जबकि मेटा अटैक में ऐसा कोई भी कार्ब कीटाइन नहीं बन रहा है। सो NO2 ग्रुप विल prefer or direct the incoming electrophile towards meta position. That's why NO2 group is meta directing, because meta पे जो कार्ब कीटाइन बन रहा है it is more stable. Next is effect of halogens. Halogens का जो effect होता है, अब हेलोजन का क्या है, क्लोरीन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इट हैज़ माइनस आई इफेक्ट, बट बिकॉज इट हैज़ 2 lone pair of electrons so it will show plus R effect. It has tendency to release the electrons to the system to which it is attached. तो अब देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी है हेलोजेंस का और प्लस आर इफेक्ट भी है। माइनस आई इफेक्ट तीनों पोजीशन पे ऑपरेट करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे और मेटा पे, जबकि प्लस आर इफेक्ट जैसे कि हमने NH2 के स्ट्रक्चर बनाए थे एनिलीन के, प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो पे ऑपरेट कर रहा था, येस, पैरा पे ऑपरेट कर रहा था, येस, बट मेटा पे ऑपरेट कर रहा था, नो। मेटा पे कोई भी रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं था। NH2 ग्रुप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर रहा था जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है। सो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। सो ओवरऑल जो है इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस। माइनस आई इफेक्ट इनका डोमिनेट करता है प्लस आर इफेक्ट से। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज डीएक्टिवेटेड लेस, while meta position is deactivated more, because ortho position पे माइनस आई इफेक्ट इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, बट प्लस आर इफेक्ट की वजह से वो एक्टिवेट हो रहा है, उसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है। पैरा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो डीएक्टिवेट हो रहा है मॉलिक्यूल, बट पैरा पोजीशन पे प्लस आर इफेक्ट भी काम कर रहा है जिसकी वजह से उसकी डीएक्टिवेशन कम हो गई है। बट मेटा पोजीशन पे सिर्फ डीएक्टिवेशन हो रही है, एक्टिवेशन हो ही नहीं रही है। सो मेटा पोजीशन इज डीएक्टिवेटेड मोर एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज डीएक्टिवेटेड लेस। सो this chloro will direct the incoming electrophile towards ortho and para position which are less deactivated, and meta position तो completely deactivated है। So because of this chlorine will direct the incoming electrophile towards ortho and para position. Thank you.